So, good afternoon, everyone. Starting with a prayer, this class, all of you, join your hands, close your eyes. Let's pray. Dear God, we are your children. We thank you for all the abundance in life. We thank you for this life and all the gifts of life. Dear God, thank you for your blessings, guidance, and motivation. Thank you for good health, wealth, and wisdom. Dear God, I thank you in advance. Dear God, I thank you in advance for assisting me in clearing the aimed competitive exam, JEE, and NEET in the year 2022. Thank you that I'm going to become great doctor or great engineer in times to come. Three times we'll have deep breathing before we begin. Count one. Deep breath in and breathe out. Once again, breathe in and breathe out. Count two. Breathe in and slowly with a smile on the face, breathe out. One final time, come back to the moment. Eyes are closed, mind is relaxed. Smile on the face. One more time. Take a deep breath in. With a smile on the face, deep breath out. Slowly and steadily, you may open your eyes very slowly and steadily. Yes. Right. So, welcoming you all to the class once again. Let us begin the second class for mathematical tools, right? So, we have this class consisting of some topics which will be beyond the topics which we had read last time. Yes. Amish, you were reading out. Go ahead, Bacha. Yes, sir. In the previous class, so first of all, we had done about quadratic equation. Yes. We had seen what a quadratic equation is and what are the roots of quadratic equation. Correct. So then we also read about the sum of the roots and also the product of the roots of quadratic equations. Sum and product of roots. So I'll write here in front of everyone what Amish is talking about. Yeah. So Amish is saying, sir, in the last class, we had read what are quadratic equations. I'm writing QE, right? Yes, we had read about the roots, sum of roots and product of roots, right? Yes. Next one was, yes, Amish, go ahead. So the next thing that we did was trigonometry. We had seen the basics of trigonometry, the ratios of sine theta, cos theta, tan theta. Yes.
And sir, we had also seen a special triangle. Correct. And at last, we looked into some of the new trigonometric identities. New trigonometric identities. Yes. So this was the special triangle, right? Can anyone tell me? Yes. So Chaitanya, let me know what were the sides of this special triangle that we had read about in the last class. What were the length of the sides? Hypotenuse was 5, right? Then base was suppose 3, and suppose this is 4. So can you tell me what will this angle measure? The angle between 5 and 3? 53 degrees. 53 degree. Absolutely correct. Amish Bacha, absolutely correct. And Chaitanya, great. Yes. So this angle will be, yes. Can Kartikeya, you tell me what will this angle be? 37 degrees. 37 degrees. 37. Absolutely correct. Absolutely correct, bacha log, right? So we have learned that about this special triangle. Then we saw some specific trigonometric identities, right? We saw some trigonometric identities. Okay. So Kushal, can you tell me what is the value of sine for, say, let me take a value sine 120 in terms of sine 60 and cos 60. Try it out. Try karo bacha. You have to calculate sine 120 using the values of sine 60 and cos 60. कैसे करोगे? Yes, Kushal. Try करो. हमने साइन के कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे क्या कुशल लास्ट क्लास में? रिकॉल करो. Sir, it will be root 3 by 2. हाँ, we'll do that, but tell me the approach. कैसे फाइंड किया आपने, बताओ. Sine. First of all, we will break sine 120 degree into 2 into 60 degree. Okay, so you can write sine 2 theta. Formula बोलो is equal to 2 sine theta cos theta. 2 sine theta cos theta. Absolutely correct बच्चा. हाँ, उसके बाद sine of Then 2 into 60 will be written as 2 into 60 degree. 60. What does this mean, Kushal? That what are we taking theta equal to? 60 degrees. Absolutely correct. So this will be given as, आगे बोलो, 2 sine 60 yes, 2 sine and cos 60 60 and cos 60. कितना हो जाएगा बोलो? 2 into sine 60 sine root 3 by 2. Root 3 by 2. Absolutely correct. Cos 60 1 by 2. 1 by 2. Absolutely correct, bacha. So this becomes root 3 upon 2, right? This is the value of what? Sine 120 degrees, right? Clear, everyone? How did we go about it? Right? Great, Kushal. Excellent. So let us have now Viraj giving us the next answer. Now, using the same 2 theta formula, you have to find out the value of cos 180. Cos 180 has to be found out using the 2 theta formula. Yes. Yes, Kushal, try it out. Yes, Viraj, try it out. I'm randomly calling anyone, right? Yes. In no specific preference. Yes. First of all, tell me the formula. What is the formula for cos 2 theta? Yes. So cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1. Is this the only one formula, or there are other formulas also? So there are other formulas also. Like? So like cos 2 theta is also equal to 1 minus 2 sine square theta. 1 minus 2 sine square theta. Absolutely correct, bacha. And And cos square theta minus
sin square theta. माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा, अब सॉल्व करो, बताओ कैसे आगे बढ़ोगे इसके बाद. यस. सर अभी क्योंकि cos 2 थीटा है तो अपन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेंगे. 90 डिग्री ले लेंगे. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा. आगे क्या लिखोगे? 2 टाइम्स ऑफ, बोलो, cos cos स्क्वायर square 90 राइट minus 1. माइनस 1. एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या हो जाएगा बोलो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू cos 90 कितना होता है? 0 0 माइनस 1. तो आंसर क्या आ जाएगा? minus 1. ये किसकी वैल्यू है? माइनस 1 किसकी वैल्यू है? cos 180 की. याद रहेगा सबको ये, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, एब्सोल्युटली करेक्ट. राइट नाउ वंस यू हैव लर्न दिस, राइट, एक और फॉर्मूला देखते हैं. सो नाउ आई थिंक माहिवेश विल आंसर, राइट? यस. सो right, yeah, yes Mahesh. So you have to find out what is the value of tan 120 degree. Yes, how will you find out Mahesh? Try karo. Yes bacha. हाँ बच्चा बोलो, tan 2 थीटा का पहले फॉर्मूला बताओ. Tan 2 theta equals to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Absolutely correct बच्चा. आगे बोलो. So we'll take theta equals to 60 degrees. 60 degree. Yes. 6 बोलो. 2 tan 60 2 upon 60 1 minus tan square 60. माइनस tan स्क्वायर 60. करो, कैलकुलेट करो, सभी लोग करेंगे, ठीक है? क्या हो जाएगा बोलो? tan 60 कितना होता है माहेश? √3. So tan 60 राइट. आगे अब tan 60 का स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर. √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3. हाँ या ना? करेक्ट. yes sir. राइट. तो आंसर क्या आ जाना चाहिए बताओ, यहाँ से आगे बताओ. The answer should be 2 into √3 upon 2 -2 3 upon -2, 1 minus right? And therefore the answer will become -1 minus into √3. Correct? ये किसकी वैल्यू आ रही है? 120. minus √3. Absolutely correct बच्चा, absolutely correct. All right. So now let us take next question. I think few more are left. We'll take you all also one by one. Okay. ये लिख लिया सबने? जिसने जो भी स्क्रीन पे लिखा है उसको अपने पास जॉट डाउन कर लिया है? रेज योर हैंड. Raise your hand if you have jotted down and understood both. Jotted down and understood everything, whatever is written on the screen. Please raise your hand quickly. Yes. Yes. जिसने जो भी स्क्रीन पे लिखा है उसको समझ लिया है वो प्लीज हैंड रेज करो. Yes, और लिख भी लिया है, right? Both cases. You should have written as well as understood whatever is written on the screen. Correct? Yeah. Right. So let me see how many of you are done. Only then we'll move ahead. Okay, Kartikeya, Amish, Mahivish, Anya, Rahul, Veeraj, Shrish, Kushal is done. चैतन्य आप भी जैसी हो जाता है मुझे बताओ, ठीक है?
बाकी लोग तब तक जो भी अभी तक पढ़ा है उसको देखो, एब्जॉर्ब करो, वेरी साइलेंटली एब्जॉर्ब व्हाटएवर इज रिटन ऑन द स्क्रीन, राइट? All right. So, Chaitanya Bacha, are you done? Yes. All right. All right. All right. Thank you. Everyone can bring their hands down. Okay. सर एक डाउट था। हाँ हाँ बोलो। कौन है? सपोज राहुल। हाँ राहुल बोलो राहुल। सर सपोज अगर हम लोग को tan 90 की वैल्यू पूछी है तो हम लोग डायरेक्ट tan 90 की वैल्यू लिखना है कि ये मेथड से कर सकते हैं? देखो अभी हमने ये टेक्निक्स क्यों यूज की, पर्पस था फाइनल आंसर तक पहुंचना। कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, आई एम राइटिंग देम डाउन हियर। सो इनको आपको जुबानी याद रखना है। मतलब आपको अगर मैं कभी भी पूछ लूं tan 90 कितना है तो राहुल का जवाब आना चाहिए सर tan 90 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हो रहा है कि कुछ वैल्यूज हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, जैसे आई विल राइट देम हियर वन बाय। सो tan 90 हैज टू बी रिमेंबर्ड जस्ट एज इट इज। Am I clear, Rahul? Yes, sir. है ना? हाँ. Just a minute. I'll be writing those values here. So these are sine, tan, and cos of some general values which you all need to remember at any point of time. मैं आपको सुबह 3 बजे उठा के पूछूं कि हाँ भाई बताओ tan 20 या tan 45 कितना होता है, तो फटाक से जवाब आना चाहिए सर 1। ठीक है? So writing it here. देखो everyone, these are the values of sine, right, theta, cos theta, right, and tan theta respectively, whereas here at the top I'm writing theta values. Have a look, screen ke right hand side par on the top, right, have a look. So we have sine of 0, उसी तरह से sin cos tan for 30 degree, उसी तरह से right, उसी तरह से 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये वाली वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है? सो आई एम पुटिंग द कॉलम्स हियर। एक एक करके सब लोग इनको फिल अप करो, या इफ यू वांट आई विल डू इट फॉर यू एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल पुट अ टेस्ट। ठीक है? या कुछ मैं करता हूँ, कुछ आप करो। So these are values of angles in degrees written at the top, and you have at the same time the sine, cos and tan for those angles, right? Start filling the column. Yes. कैसे fill up करोगे? So you have the values as under given as, yeah. So writing first for sine, right? Sine 0. One by one, I'll ask from any one of you. Let us take this time from Enya. Yes, Enya. So sine 0 is 0. 0. Sine 30, 1/2. 1 by 2. Sine 45, 1/√2. absolutely correct, bacha. Sine 60, √3/2. √3 by 2. Sine 90, 1. 1. Sine 120. Look here. At the center of the screen, we just calculated. Sine 120 is? बोलो. √3/2. √3/2. राइट एन्या? यहाँ पे आपने देखा ना? Yes, sir. Yes. राइट, ठीक है। साइन 180 कितना होना चाहिए, सोचो कैसे करोगे? यहाँ पे निकालो, देखो एन्या यू विल आंसर दिस, राइट? साइन 180,
sin 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो एन। Yes, Anya. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. absolutely correct. इसमें थीटा कितना हो जाएगा अगर मुझे इसको 180 के लिए कैलकुलेट करना है तो 90. 90. अब वैल्यूज डालो, बताओ कितना हो जाएगा। साइन 2 इंटू साइन ऑफ 90 इंटू कॉस ऑफ 90। हाँ या ना? Yes, sir. साइन 90 कितना होता है बच्चा? 1। Yes, sir. और cos 90 कितना होता है? 0. 0। तो इसीलिए 2 इंटू 1 इंटू 0 कितना आ गया? 0, राइट। इसका क्या मतलब हो गया? साइन 180 किसके इक्वल होता है? 0. 0 के। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। साइन 180 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला, लेट अस टेक दिस टाइम आंसर्स फ्रॉम चैतन्य। यस चैतन्य, बोलो। cos 0। चैतन्य, आपके लिए स्क्रीन इनविजिबल हो गई है क्या? लाइक आपके एंड पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है ना? ठीक है, ठीक है। cos 30 कितना? cos 30 is root 3 by 2. yes. cos 45 is 1 root 2. 1 by root 2, right? Okay. Yeah, cos 60 is 1 divided by 2. 1 divided by 2. cos 90 is 0. 0. cos 120 कितना होगा? सोचो। Sir, I'm going to find about it. Sir, Right. I'm doing the Go ahead, go ahead. सभी लोग find करेंगे, ठीक है? Everybody will find out value for cos 120. Yes, use the formula for cos. देखो कैसे खोजोगे? -1/2. यहाँ देखो everyone। अच्छा, मैं ना सभी के लिए एक एक करके लाइक चांस लाते जाऊंगा, थोड़ा वेट करो, डोंट वरी। देखो cos 2 थीटा, चैतन्य स्क्रीन पर देखो ऑन द LHS। I'm bringing the spotlight here. Have a look. So you have cos 2 theta, right, given as 2 cos theta, 2 cos square theta minus 1, right? तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा चैतन्य अगर मुझे cos 120 निकालना है तो? 60 degree. 60 degree. Absolutely correct बच्चा, absolutely correct. Sir, I'm using the formula cos theta equals to 2 cos square theta upon 2 minus 1. 2 cos square theta directly minus 1, right? यहाँ देखो फॉर्मूला देखो। No, sir. Sir, 2 cos square theta upon 2 minus 1. बेटा वहां पे शायद आपने फॉर्मूला नोट करने में हो सकता है कुछ चैलेंज आया हो। ये देखो यहाँ पर हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला यूज करो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1. This is the right formula बच्चा। जिसकी आप बात कर रहे हो ना वो सही है, लेकिन उसमें हम फिर बात करेंगे cos थीटा की, वो भी एक तरीका है, उसको भी देखते हैं। We are coming to it and we'll see the formula also, don't worry. पहले यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा है इसको सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा बच्चा? 60 degree, sir. 60 degree. Absolutely correct. एक मिनट। So we'll have cos square 60 degree, correct? हाँ, आगे बोलो। -1, right? cos 60 कितना होता है बच्चा? Sir, 1 root 2, 1 upon 2. 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा into 2 minus 1, right? Therefore Yes, we sir. have 2/4 minus 1, right? That is 1/2 minus 1, और 1/2 minus 1 कितना होता है? -1/2, right चैतन्य बच्चा? Yes, sir. क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? Yes, sir. Okay. And sir, we have found about the cos 80, so it's equals to -1. cos 180 is -1, yes.
So cos 120 is equal to minus 1 by 2. अब cos 180 is equal to minus 1. Absolutely correct बच्चा. ठीक है. Now let us take the next one. So we have आज किस किसने कहा है? Mahivesh said Shrish and Veeraj are to go, right? Veeraj. Yes, Veeraj. Tan 0. Sir, 0. Tan 0 is 0. Tan 30 should be 1 by root 3. 1 by root 3. Tan 45, 1. 1. Tan 60 is Root 3. root 3. Tan 90 is Not defined. not defined. I'm writing ND. Okay, not defined. Yeah. Next one is tan 120 should be Minus into root 3. absolutely correct. Minus root 3. Yes. Tan 180 should be So not defined because tan 0. 90 is not defined. सोचो tan 180 कितना होना चाहिए? I'm writing 0. plausible answer here. Have a look. Tan 180 is equal to sin 180, right? Whole by cos 180. यही होगा क्या वीरज? Yes, sir. अच्छा, sin 180 कितना होता है? So 0. sin 180 होता है 0. ठीक है. cos 180 कितना होता है? अभी अभी हमने कैलकुलेट किया. Minus 1. माइनस. तो इसीलिए 0 बाय -1 कितना हो जाना चाहिए? 0. 0 या नॉट डिफाइंड? सोच के बोलो. 0 by anything is 0. Veeraj. 0, sir. 0. Absolutely correct. Absolutely correct. Absolutely correct. ये चार्ट एक बार सब लोग अपने पास वेरीफाई कर लो जो भी आपने लिखा है. Are you satisfied with the values? एक बार देख लो सभी लोग, क्रॉस चेक करो. और जिन जिन ने अभी तक आज क्लास में जवाब नहीं दिया है या मैंने उनसे नहीं पूछा है, सो प्लीज रेज योर हैंड. सो नेक्स्ट बारी आपकी होगी. ठीक है. प्लीज रेज योर हैंड इन केस you have not asked the questions, right? Yeah. All right. Karthik, I have seen your questions. We are coming to it, right? We are coming to it. Don't worry. So, जिन जिन ने अभी तक जवाब नहीं दिया है आज की क्लास में या मैंने उनसे नहीं पूछा है, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन कम टू दोस. श्रीश एंड राहुल. ओके, ठीक है. या तो अब हम लोग ना इसके अलावा कुछ और भी देखने जा रहे हैं. हम एक अलग तरह का सिस्टम देखने जा रहे हैं और उस सिस्टम को कहते हैं रेडियन सिस्टम. रेडियन, मिनट्स, राइट, डिग्रीज एंड सेकेंड सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट. तो सभी लोग हेडिंग देंगे. आई एम रबिंग एवरीथिंग ऑन द बोर्ड. ठीक है, वन बाय वन. सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉप दिस पार्ट. आई होप सबने लिख लिया है, राइट? किसी ने नहीं लिखा हो तो वो बोल सकते हैं, राइट, एट सच पॉइंट ऑफ टाइम्स. ठीक है, सभी लोग हेडिंग दो, एंगल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट या एंगल मेजरमेंट. सिंपली एंगल मेजरमेंट हेडिंग रहेगी आपकी कॉपी में, एंगल मेजरमेंट. अभी तक हमने कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ा है? एनीबॉडी? सो यस, राहुल. we'll take Rahul and Shrish one by one, right? हाँ, कोई कुछ कह रहा था. Somebody was saying something. Sir, degree measure. Degree, yes. I think let's take let's take Shrish और फिर राहुल पे भी आता है. ठीक है, ओके. तो अभी हमने अभी तक जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ा है दैट इज डिग्री मेजरमेंट्स, करेक्ट. अब हम लोग ना कुछ और भी यूनिट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोगों को. दोज यूनिट्स आर कॉल्ड रेडियंस, मिनट्स,
एंड सेकेंड्स. हेडिंग दे दो रेडियंस, मिनट्स एंड सेकेंड्स. हेडिंग में ये 4 यूनिट्स लिखो. ये किसके यूनिट्स आने वाले हैं? दीज विल बी द यूनिट्स ऑफ एंगल. अभी तक हमने ऑल्दो पढ़ा है कि आर, मिनट और टाइम आर द यूनिट्स ऑफ टाइम, बट अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिनट्स और सेकेंड्स को एज यूनिट्स ऑफ एंगल. किस तरह से देखना, ठीक है. सो हैव अ लुक. हम लोग ये देखेंगे क्या कि हर पाई रेडियंस में, उसको डिनोट करते हैं पाई रैड से, राइट, और यू कैन राइट पाई रेडियंस. हर पाई रेडियंस में होते हैं 180 डिग्रीज. राइट इट डाउन विथ यू. हर पाई रेडियंस में होते हैं 180 डिग्रीज. और पाई रेडियंस का मतलब है the value pi is a number or is a symbol in mathematics which implies either 3.14 or you can write it as 22/7. Right, so this is the value of the mathematical symbol pi. Right, ये लिख लो अपने पास जो आप लोग जनरली यूज करोगे, ठीक है. How do you define pi? Pi is defined as for any circle, right. पहली बार जिस मैथमेटिशियन ने पाई के बारे में बात कही थी, उसने कहा था कि पाई इज नथिंग बट, अगर आपके पास एक सर्कल है, राइट, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, अगर आपके पास इस तरह से एक सर्कल है तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायामीटर का रेशियो देखना. क्या लिख रहा हूं? सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायामीटर का रेशियो क्या कहलाता है? पाई. अगर आप दुनिया में कोई भी सर्कल बना लो, ठीक है, और उसका सर्कमफ्रेंस लो, चाहे कितना ही बड़ा या छोटा सर्कल हो, राइट, हमेशा आप ये पाओगे कि उसके सर्कमफ्रेंस और डायामीटर, दिस इज द डायामीटर, राइट, इफ द रेड डॉट, if this is the center, then this will be the diameter, right. The longest chord in a circle which passes through its center is called a diameter. So पहली बार जिस मैथमेटिशियन ने पाई डिस्कवर किया, उसने ये डिस्कवरी की थी कि पाई का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय इट्स डायामीटर. तो हम क्या लिखते हैं जनरली? याद करो, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? श्रीश बोलो. सर्कमफ्रेंस इन टर्म्स ऑफ कितना होता है? 2 पाई आर. तो 2 पाई आर अपॉन डायामीटर इन टर्म्स ऑफ r इज इक्वल टू 2r. राइट, इसीलिए we'll get the answer as pi. ये क्लियर हुआ क्या सबको कि किस तरह से हमने समझा? एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड. राइट, हमने क्या समझा कि हमारे पास पाई इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर ऑफ एनी सर्कल इन द वर्ल्ड. राइट, दिस इज हाउ वी डिफाइंड पाई. नाउ we came to a unit called as radians. हमने कहा कि pi radians का मतलब होता है 180 डिग्री. अभी हम इसको सिर्फ सिंपल मेजरमेंट के टर्म्स में समझते हैं, ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ राहुल, एक बात का जवाब देना, ठीक है. अगर आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं, राइट, और उन 100 चॉकलेट्स का कुल मिला के दाम है 600 रुपीज. 600 रुपीज. टेल मी, अगर मुझे एक चॉकलेट का रेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? तरीका बताना. 600 upon 100. 600 upon 100 equal to 6 rupees. 600 into 1 upon 100 is giving me 6 rupees. Correct? सब इससे अग्री करते हैं, right? This is how we calculated what? 100 चॉकलेट के दाम से हमने एक चॉकलेट का दाम निकाल लिया 6 रुपए. ठीक वैसे ही यहाँ हमने जो मेथड लगाया, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड. दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड. द सेम मेथड वी आर आल्सो गोइंग टू यूज ओवर हियर, राइट. देखो, अब हमारे पास अगर पाई रेडियंस में 180 डिग्रीज है तो 1 रेडियंस में कितने डिग्रीज होने चाहिए? कैसे निकालोगे? राहुल आप ही बताओ. 1 into 180 upon pi. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा. देखो, वही तरीका जो हमने चॉकलेट के केस में यूज किया था, बस उसको यहाँ यूज कर लिया. देखो, जैसे 100 चॉकलेट्स का दाम 600 रुपए, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट? इट इज इक्वल टू 1 into 600, दैट इज 1 into 600 upon 100, राइट.
So that comes out to be 6 rupees. ठीक वैसे ही अगर पाई रेडियंस में आते हैं 180 डिग्रीज, तो एक रेडियन में कितने डिग्रीज आएंगे? दैट इज 1 into 180, राइट, होल अपॉन पाई. दैट गिव्स मी 180 by pi degrees. राइट राहुल, यही कह रहे हो? यस सर. राइट. तो ये सभी लोग नोट कर लो. नोट दिस डाउन. Meanwhile, I'll rub the other part of the board. Coming to the next part, right? Right. So coming to the next part is that we had understood now we have understood that 1 radian is nothing but 180 upon pi degrees. Correct? अच्छा, इसका मतलब अगर मैं अब आपसे पूछता हूं सपोज कि भाई इसका उल्टा भी तो एप्लीकेबल है कि हर 180 डिग्री में पाई रेडियंस है, इसका मतलब 1 डिग्री में कितने रेडियंस हो जाएंगे? हाँ राहुल बोलो. 1 into pi Pi by 180. pi by 180 रेडियंस. एब्सोल्युटली करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा, इस रेडियंस की एक खासियत है, जैसे हम लोग हर बार डिग्री लगाने के लिए 60 के साथ ऊपर ये जीरो बनाते हैं ना छोटा सा, लेकिन वैसा ही हमेशा रेडियंस के साथ नहीं होता है. अगर सपोज मैं कहीं पर ऐसी वैल्यू लिखता हूँ पाई बाय 3, तो हर बार मुझे अलग से यहाँ स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं पाई बाय 3 रेडियंस की बात कर रहा हूँ. ये पाई देख के समझ में आ जाता है कि हाँ भाई आप रेडियंस की बात कर रहे हैं. तो इसीलिए हम ना इसको ओमिट कर देते हैं. कहीं लिखा रहे तो अच्छा, नहीं लिखा रहे तो समझ जाना कि पाई बाय 3 का मतलब है पाई बाय 3 रेडियंस. ठीक है, एंगल अगर कहीं भी दिया है और पाई बाय 3 दिया है तो जरूरी नहीं है हर जगह उसके साथ ये रेडियंस यूज किया जाएगा. ठीक है, इसको एज अ नोट अपने पास लिख लो दैट वी omit the use of the word radians again and again. इसको लिख लो, we omit the use of word radians. मतलब कहीं लिखा रहे तो देख के घबरा मत जाना कि अरे ये क्या लिखा है, पाई बाय 1 पाई बाय 3 लिखा हुआ है. नहीं, बी वेरी काम. ठीक है, पाई बाय 3 लिखा है, इसका मतलब है इट इज सम काइंड ऑफ रेडियन में एंगल. राइट? ठीक है, लिख लो पाई बाय 3 रेडियंस. करेक्ट? दिस वाज द नोट. लिख लिया सबने? राइट. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कुशल एक बात बताओ, अगर if I have 180 degrees is equal to pi radians, what does this mean? 90 डिग्री में कितने रेडियंस आएंगे? हाफ कर दो. Pi by 2. pi by 2. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा. अच्छा, नेक्स्ट माहिवेश, अगर आपके पास 180 डिग्री में पाई रेडियंस हैं तो 45 डिग्री का क्या मतलब हो जाएगा? कितने रेडियंस? Pi by 4. pi by 4. एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट वन, श्रीश, ये बताओ कि अगर 180 डिग्रीज में पाई रेडियंस हैं तो 60 डिग्रीज में कितने रेडियंस होने चाहिए? Sir, pi by 3. pi by 3. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो हु रिमेन्स? चैतन्य, ये बताओ कि अगर 180 डिग्रीज में पाई रेडियंस हैं तो 120 डिग्रीज में कितने रेडियंस होने चाहिए?
pi by pi by 3. 2 पाई बाय 3। देखो यहाँ पे हैव अ लुक, अगर Yeah. हमारे पास 60 डिग्री का मतलब क्या है, पाई बाय 3, तो ऑब्वियस बात हुई उसका डबल 120 डिग्री में कितने हो जाएंगे, बोलो। हाँ बच्चा बोलो, 2 2 pi पाई by बाय 3. 3। एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 pi by 3. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो लिख लो सभी लोग, इस जो भी अभी मैंने बताया है ऑन द स्क्रीन, राइट इट डाउन विथ यू। All right, so now let us take next understanding, right? जो भी अभी हमने पढ़ा इसको हम फिर से एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहां पर एक टेबल बनाओ, और जस्ट let's say we have a short table here. In this table, write down corresponding values of angle in theta, angle in degrees and pi, radians, degrees and radians, right? That is in terms of pi and in terms of radians. Yes, get going quickly. क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर आपको लिखना है पहले एंगल इन डिग्रीज, और यहाँ लिखना है एंगल इन रेडियंस, राइट? सो गो अहेड, देखो क्या क्या वैल्यूज होंगी। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, राइट, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 120 डिग्री, then let's say 180 degree, right? We have 270 degree and 360 degree. ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए, जो भी मैंने यहाँ वैल्यूज लिखी हैं, these should be by heart to all of you in a dodging format. मैं कभी भी पूछूं फटाक से आंसर आना चाहिए, राइट? फिल कर लो कॉलम सभी लोग, आई कैन रैंडमली आस्क एनीवन, है ना? तरीका समझ में आया ना सबको? यूनिटरी मेथड लगाना है। अगर 180 का मतलब पाई, 180 डिग्रीज इज पाई रेडियंस, तो बाकी के एंगल कितने होंगे आप निकालते जाओगे यूनिटरी मेथड से। सो आई राइट इट हियर, बट देन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि खुद ट्राई करो जो अभी सिखाया उसके जरिए। यस, लेट मी आस्क नाउ वन बाय वन एनीवन। सो अमीश, और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एन्या। यस एन्या, 0 डिग्री में कितने रेडियंस आने चाहिए? So 0. 0। अमीश, 30 में? So pi by 6. Pi by 6, absolutely correct, absolutely correct Enya, right? Absolutely correct बच्चा अमीश, ठीक है। So give me a second. Pi by 6, or maybe I'll write even better, pi
by 6. करेक्ट. चैतन्य, 45 डिग्रीज कितने होना चाहिए? हाउ मेनी रेडियंस? Sir, it should be pi by 4. Pi by 4. Absolutely correct. Yes. Kartikeya, 60 degrees equal to pi by 3. pi by 3. Yes. Next we have Kushal. 90 degrees pi by 2. pi by 2. Next we have Mahevesh. Yes, Mahevesh. 120 degrees 2 pi by 3. pi by 3. Absolutely correct, Mahevesh Kushal. Then we have Rahul. Yes, Rahul. 180 degrees pi. Now we have Shrish. Yes, bacha. Bolo. 270 degrees 3 pi by 2. 3 pi by 2. Absolutely correct. कैसे सोचा ये बताओ? इसको निकालने का कोई आसान तरीका है क्या? देखो आप लोगों को ना यही 90 Sir, plus I 1. can say. Sir, can I say? बोलो बोलो बोलो. पहले श्रीश बोलो फिर चैतन्य भी बोलो. हाँ, गो अहेड. Sir, 180 plus 90. Pi plus pi by 2. अरे वाह, देखो 180 plus 90 that is pi plus pi by 2 is equal to 3 pi by 2. वेरी गुड. ये भी एक तरीका है. हाँ चैतन्य बच्चा बोलो. Sir, I want to say about for the 360 degree. It should be 4 pi by 2. Sir, I have concluded this by the reading the table of 9. It 36 comes in the 4, so it should be 4 pi by 2. ठीक है. 4 pi by 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. It should become equal to 2 pi. 2 pi, right? Absolutely correct. अच्छा, 270 को आप एक और तरीके से समझ सकते हो कि 90 डिग्री का मतलब है pi by 2. मतलब 270 कितना हो गया? 3 times of 90, right? Which gives you 3 times of pi by 2. Am I clear, everyone? सबने लिख लिया अपने पास ये नोट? Has everybody jotted it down? Yes, sir. All right. Everyone done है ना? जिसने लिख लिया है, right? उनको छोड़कर बाकी लोग हैंड रेज कर लीजिए. भैया अमेजोन से क्या? हाँ, क्या कौन कौन सा? So now let us move to the next part, right? आप लोगों से gentle request है once again, whenever you are not talking, please ensure not talking. Please ensure करो कि आपका mic mute रहे. No worries, ठीक है. अच्छा, अब हम लोग आ रहे हैं. Sir, I have a request. हाँ चैतन्य बच्चा बोलो. Sir, I have a request. Can I come in 2 minutes? Someone is waiting at the outside door of my house. ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं. अपना लाइक आप जो भी डिवाइस पर बैठे हो उसे बस म्यूट रख लो एंड देन यू कैन कम बैक. नो वरीज. Yeah, okay. ठीक है. सो क्लास, एज आई वाज सेइंग हियर वी हैव अभी हमने जो भी वैल्यूज को डिग्रीज के टर्म्स में पढ़ा है, राइट? appreciated one of your classmates, I think it was, yes, I think Kartikeya had requested कि sir क्या हम इन values को पाई के टर्म्स में भी देख सकते हैं? यानी कि अब मैं अगर आपसे साइन पाई करूं rather than साइन 180 तो आपके दिमाग में तेजी से आना चाहिए हाँ साइन पाई मतलब साइन 180, और साइन 180 कितना होता है? 0 होता है. ठीक है. तो अब आपने जहां पर ये एंगल, ये पूरा जो भी कुछ लिखा है ना ऊपर, जो एंगल या थीटा वगैरह लिखा है, देखो इसको अपन अब दोनों टर्म्स में लिखते हैं, डिग्रीज के भी और रेडियंस के भी टर्म्स में. देखो ऐसा कुछ, इसको फिर से दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो. राइट, एंड देन यू मे राइट, एक तो हो जाएगा डिग्रीज में, दैट इज 0 डिग्री, देन यू हैव 30 डिग्री, राइट, 45 डिग्री, then you have 60 degree, 90 degree, 120 degree and 180 degree. उसी तरह से इनका पाई वर्जन इनके नीचे लिख लो. क्या क्या हो जाएगा? 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, 3 पाई बाय, sorry, this will be पाई बाय 3,
pi by 2, right? Then you have here 2 times of pi by 3 and this is pi. करेक्ट? ऐसे ही हो सकता है अगर मैं आपसे 270 का पूछ लूं, राइट? तो वो भी आपको याद होना चाहिए. करेक्ट? सो लिख लो एवरीबडी, जॉट दिस डाउन. जहां पर आपने डिग्रीज की वैल्यू लिखी है वहां पर साथ में रेडियंस पे लिख लो. ये ऐसे मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हेल्प आने वाली है इन योर एंटायर फिजिक्स का स्कोप. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्विकली देखो. Right, let us see, let us move ahead now. So now आप लोगों के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया था. नेक्स्ट आगे आपका कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ोगे मेरे साथ, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंसेस. ये आपको आने वाले समय में कई जगह काम आ सकता है. ठीक है, राइट डाउन सीक्वेंसेस. क्या होते हैं सीक्वेंसेस? तो ना आपको, अगर आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी ये पढ़ाए ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बस कुछ बेसिक्स देख रहे हैं जो काफी काम के हैं. राइट, सो हैव अ लुक. अलग अलग तरह के सीक्वेंसेस होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. राइट, फर्स्ट इज कॉल्ड एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. राइट, सो जिन्होंने बायो लिया है दे माइट नॉट बी हैविंग अ आइडिया अबाउट इट. तो उनके लिए दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम. जिनका मैथ्स है और सपोज क्लास में हो गया है तो आपके लिए रिवीजन हो रहा होगा. एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का क्या मतलब होता है? ऐसे प्रोग्रेशन जो जिनके बीच में कोई कॉमन डिफरेंस हो. जैसे पहला टर्म ए तो दूसरा टर्म होगा ए प्लस डी. इसमें फिर आप डी जोड़ दो तो इट विल बी ए प्लस 2d, राइट? देन ए प्लस 3d, राइट? ए प्लस 4d एंड सो ऑन. राइट, इसका आखिरी टर्म क्या होगा? देखो, पहला टर्म इज ए, राइट? फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म, जब टर्म सेकेंड है तो क्या आ रहा है? ए प्लस 1 इंटू डी. अगला टर्म देखो, जो थर्ड टर्म है वो कैसा लिखा गया है? ए प्लस 2 इंटू डी. राइट, उसके बाद क्या लिखा गया है? जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में ए प्लस 3 इंटू डी. कोरिलेशन समझो, जब फोर्थ टर्म है तो यहाँ 3 आ रहा है, जब थर्ड टर्म है तो यहाँ 2 आ रहा है, जब यहाँ सेकेंड टर्म है तो यहाँ क्या आ रहा है? 1. इसका मतलब अगर मैं इसके nth टर्म की बात करता हूँ, so for the nth term the value will become a plus n minus 1 into d. Absolutely correct, absolutely correct. ये क्लियर हुआ सबको? इस सीरीज का जो nth टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी द nth टर्म. उसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसको हम और अच्छे से देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर. सो वी हैव, लेट्स से, सपोज मैं कहता हूं जो पहला टर्म है दैट इज a, दैट इज गिवन एज 2. ठीक है, और जो d है, d को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. तो a इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म and d is called as the common difference. Suppose the common difference is given as 3, right? तो अब सीरीज बनाओ, क्या हो जानी चाहिए? एनी वन ऑफ यू, महिवेश ट्राई करो, क्या हो जानी चाहिए सीरीज? पहला नंबर विल बी 2, राइट? अगला क्या हो जाना चाहिए? 2 प्लस 3 कितना होगा? 5. अगला बोलो, प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8. 8 प्लस 3 11. 3 14 एंड सो ऑन. क्लियर हुआ माहेविश बच्चा? यस सर. ओके, राइट. तो इस तरह से आप लोगों को अपने पास लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो ये एवरीवन. अगर पहले पढ़ा हुआ है दोबारा लिख लो, राइट?
अच्छा, बिफोर यू प्रोसीड एक और चीज लिखो. सो अभी हम लोग जो एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, वन पॉइंट विच वी हैव टू कवर मोर इज, आप लोगों ने देखो डिग्रीज देख लिया, डिग्री और एंगल का, डिग्री और रेडियन का रिलेशन देख लिया. ठीक वैसे ही देयर इज वन मोर रिलेशन. इसको इसी सीक्वेंस के बाद एक छोटा सा कॉलम बना लो और वहां लिख लो डिग्री और रेडियंस इज डन, राइट. अब आते हैं मिनट्स और सेकंड्स पे. देखो वी हैव 1 डिग्री इज गिवन एज 60 मिनट्स. जैसे अभी हमने क्या देखा, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक वैसे ही 1 डिग्री इज 60 मिनट्स. और मिनट्स को डिनोट करने का तरीका होता है ऐसे एक डैश से, ठीक है, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऐसा. This is called minutes. Then you have 1 minute, right? Something like this is given as 60 seconds. This is also, these degrees, radians, minutes, seconds, all of that are angles or angle को measure करने के different units, right? So you can write seconds as double inverted comma after 60 seconds, right? So I'll repeat. Pi radians is 180 degrees. 1 degree is 60 minutes, right? And 1 minute is 60 seconds. Double inverted comma on the top. Right? लिख लिया सबने? Write it down, everyone. अब सपोज मैं आपसे पूछ लूं अगर कि भाई बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 पाई बाई 2 रेडियंस इन सेकेंड्स. कैलकुलेट करो सभी लोग, एंड वन ऑफ यू विल आंसर. लेट अस टेक दिस टाइम एनी रैंडम वन, anyone. I'll take any person. So let's take this time Rahul. Okay, yes, Rahul, try करो. कैसे करोगे? रेडियंस को सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? पहले रेडियंस को किस में कन्वर्ट करोगे? डिग्रीज में, हाँ या ना? हाँ, तो करो, कैलकुलेट करो. पहले 3/2 पाई. पाई का मतलब कितने डिग्रीज हो जाएगा बच्चा? पाई डिग्री, पाई रेडियन 270 degrees. 270 degree. Correct. It will, pi is 180 and therefore 3/2 into pi is equal to 270. Correct. हाँ, 270 डिग्री. अब एक डिग्री में कितने सेकंड, कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. इसका मतलब 270 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? 270 into 60. हाँ या ना? अप्रोच बोलो, अभी कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ 16200. ठीक है, ठीक है, दैट इज ओके. अभी यही होगा 270 into 60. हाँ या ना? यस सर. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. आपने बोला इसका 16200 मिनट्स, राइट? अच्छा, अब आगे बोलो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं बच्चा? 60 सेकेंड्स. 60. ठीक है, अगर 1 मिनट में 60 972000. इसका फाइनल आंसर. अप्रोच बोलो, अप्रोच क्या हो जाएगा? 16200. 60 into 60 into 270. Absolutely correct. 972000. Absolutely correct बच्चा. यहाँ पर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो. One 16200 minutes is equal to 16200 minutes, या into 60 seconds, right? Whatever is the answer. क्लियर हुआ सभी को कि हमने कैसे निकाला? आई थिंक आंसर आ जाएगा 972. 972000. चेक कर लो एक बार, ठीक है, कैलकुलेटर से. तो
या तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। याद है मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन फास्ट रखनी है, तो 0 हटा दो, 162 इंटू 6 करना है। कैसे करोगे? 16 6 कितना होता है? 96, राइट? तो 960 रख लिया एक तरफ। फिर 2 60 कितना होता है? 120, राइट? या 2 इंटू 6 कर लो, कितना होता है? 12। तो 96 मतलब 960 और 12 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 972। देखो मैं एक बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कि कभी आपको 162 इंटू 60 करना है, ठीक है? तो 162 अलग रखा, 6 अलग रखा, ये 3 0 बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है? अब हमको करना है 162 इंटू 6। तो क्विकली देखिए कि 160 इंटू 6 कितना होता है। देखो ऐसा 6 इंटू 162 करना है, ठीक है? तो 6 इंटू 160 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 इंटू 160 करो, 6 इंटू 2 करो और उनको ऐड कर दो, तो 16 6 96 होता है। इसीलिए यू हैव 960 प्लस 6 2 12, दैट इज इक्वल टू 972। जस्ट टेलिंग यू अ ट्रिक कि कैसे आपको कभी कभी जटिल या कैलकुलस लाइक चैलेंजिंग दिखने वाली चीजें आसान हो जाती हैं। और आपने यहाँ जिसको 3 जीरोस को अलग लिया था, अब उनको वापस यहाँ पे ऐड कर दो। इसीलिए देखो आंसर क्या आ गया? 97200। क्लियर है बच्चा लोग जो मैंने अभी ट्रिक समझाया? कि कभी कभी आपके पास अगर कैलकुलेशन हार्ड हो तो देखो उसको इजी बनाने का तरीका ये होता है इस तरह से। उसको जैसे 160 था ना, 162, तो उसको इजी टर्म्स में तोड़ दो, मतलब 160 प्लस 2, एंड देन उसको दिमाग में करो। ये जो मैंने अभी भी किया आपके सामने, इट वाज इनसाइड माय ब्रेन, राइट? तो पहले पहले तो आपको इस तरह से लिख के करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि all these things will start happening in your brain अपने आप, without even consciously doing it, है ना? मैं आपसे ऐसे पूछूंगा, हाँ भाई बताओ 170 into 8 कितना होता है, तो फटाक से आप जवाब दोगे सर इतना होता है। जैसे अभी मैंने क्या पूछा, सपोज 171 into 8, राइट? तो ये सारी चीजें ना आपको फिजिक्स की कैलकुलेशंस को बहुत आसान बना देगी। देखो अभी मैंने जैसे पूछा 171 into 8, तो अब आपको सोचते नहीं बैठना, अच्छा चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, नहीं, सिंपल 171 के बजाय यू कैन राइट 170 प्लस 1 इंटू 8, ऐसा लिख लो, राइट? अलग अलग तरीके हो सकते हैं, hundreds of ways can be there, I'm just writing one of them, right? So this will become nothing but 170 into 8 plus 8, correct? क्लियर हो रहा है ये सबको, राइट? और ये तो हमको पता ही है कि 17 8 136 होता है, तो यह 136 0 plus 8, therefore my answer will be 1368। क्लियर हो रहा है बच्चों लोग कि छोटी सी ट्रिक है आप लोगों के लिए कि कैसे बड़ी दिखाई देने वाली कैलकुलेशंस को इजी बनाना है। एनीवेज, क्या ये क्लियर है सबको? कन्वर्जन क्लियर है? फ्रॉम पाई टू डिग्रीज, डिग्रीज टू रेडियंस, एवरीबॉडी कर लोगे? एनीबॉडी हु हैज अ डाउट प्लीज रेज योर हैंड सो दैट यू कैन आस्क इफ इन केस यू हैव एनी क्वेरी। हम लोग आगे तभी बढ़ेंगे जब आप लोग सब क्लियर हैं अपने कॉन्सेप्ट में। यस, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेरी बच्चा लोग। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राइट? इफ दिस इज क्लियर लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, देखो अब उसके बाद जो हम लोग सीक्वेंसेस पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं, राइट? सो हमने एक तरह का सीक्वेंस देखा जिसको हमने कहा एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? सेकेंड तरह का सीक्वेंस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, राइट? क्या होते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ऐसे प्रोग्रेशन जिसमें अभी हमने पहले क्या किया था, पहले हमने एक नंबर को ऐड करते गए थे, a, फिर a प्लस डी, राइट? फिर a प्लस 2d, राइट? a प्लस 3d, इस तरह से कहां तक? a प्लस n माइनस 1d तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएं अगर, तो क्या हो जाएगा? जैसे पहले a, राइट? अब पहले हम जिसको ऐड कर रहे थे उसको हमने d को कहा था कॉमन डिफरेंस, राइट? कॉमन डिफरेंस। अब हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे,
और उसको हम कहेंगे कॉमन रेशियो। क्या कहेंगे? कॉमन रेशियो। या राइट इट डाउन, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो कॉमन रेशियो में अब हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? पहले अगर a है तो अगर r कॉमन रेशियो है तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले में हम एक नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ar, फिर आगे आ जाएगा ar स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा? ar क्यूब, फिर क्या आ जाएगा? ar 4, ar पावर 5, ऐसा करते जाओ आगे बढ़ो। क्लियर है सबको? इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। अब हम एक खास तरह के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं जो आपको फिजिक्स में कई बार मिलेगा, राइट। दैट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो इनफाइनाइट कैसे? ऐसे प्रोग्रेशन में जो r की वैल्यू है दैट इज लेस देन 1, राइट। और हम इस ऐसे प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं जिसमें r की वैल्यू लेस देन 1 है, पहला। दूसरी चीज, उसमें वो इनफाइनाइट है और r की वैल्यू लेस देन 1 है। एंड तीसरा हम ये देखेंगे कि उसका सम क्या होता है, ठीक है। सो हैव अ लुक हियर, वी हैव पहला टर्म, अगर सपोज उसके लिए भी a है, राइट, अगला टर्म क्या हो जाएगा? ar, उसके बाद ar स्क्वायर, फिर r मल्टीप्लाई करो ar क्यूब, राइट, देन फिर r मल्टीप्लाई करो ar पर 5, ar पर 4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक, राइट। अच्छा, अब हम लोग एक और काम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? अब अगर ये इनफाइनाइट है इसकी वैल्यू, तो एक इसका जो सम होता है, सम ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, मतलब a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब, राइट, ऐसा करते हुए इंफिनिटी तक इज गिवन एज, फॉर्मूला होता है इसके लिए, दैट फॉर्मूला इज गिवन एज a अपॉन 1 माइनस r। इन केस यू हैव रेड दिस इन मैथमेटिक्स, इसका जो भी फॉर्मूला, मेथड, डेरिवेशन, यू माइट रिमेंबर दैट फॉर योर मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग। बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से ये अगर इतना फॉर्मूला भी याद है, दैट इज गोइंग टू असिस्ट यू इन द कमिंग क्वेश्चंस या फिर इन द कमिंग सीक्वेंसेस। देखो, अब जैसे मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूं, ठीक है, सो या, तो जैसे अब आपके पास दिया है 1, right, 1/4, then you have 1/16, right, then you have 1/64 and so on। इन सारे नंबर्स का ऐसा इंफिनिटी तक, कई बार जरूरी नहीं है हर बार इंफिनिटी दे, सिर्फ डॉट 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 दे दिया मतलब इंफिनिटी, राइट। अब आपको कहा जा रहा है अगर इनका सम इज इक्वल टू, लेट्स से इनका सम इज गिवन एज x, राइट। तो अब आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। करो, कोशिश करो सभी लोग, क्या हो जाएगा क्विकली। आई विल आस्क एनी वन ऑफ यू मीनवाइल, लेट अस टेक दिस टाइम। सबने कहा है कभी न कभी, कुशल से लेते हैं या कार्तिक या राहुल, सभी पूछ ही रहे हैं, एनी वन ऑफ यू। चलो श्रीश, ये श्रीश बच्चा, ये बताओ क्या हो जाएगा, x की क्या वैल्यू होगी, कैसे निकालोगे? सम ऑफ द टर्म शुड बी, yes Shrish, Shrish, we cannot hear you. Hello, just a minute बच्चों। ऑल राइट, हाँ श्रीश, एक बार दोबारा कहो। ओके श्रीश, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक राहुल हैज सेंड द आंसर, लेट्स सी। देखो कैसे निकलेगा, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, चेक आउट द फर्स्ट टर्म इज 1,
राइट, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो कितना है इस केस में? कैन एनीबडी टेल? लेट्स आस्क चैतन्य. यस चैतन्य, कॉमन रेशियो कितना है बच्चा इस सीरीज में? Sir, it's 4. 4 या 1/4? सोचो, Sorry, 1/4. Sorry, 1/4. सोच के बताओ. मैं 1/4. मैं Then, तो हो सकता है ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हो सकता है 4 हो, क्या पता. sir, it's 1. Then it's 1/4. Then it's multiplied by again 1/4. So it's this 1/16. Then it goes on like that. अच्छा, तो r की वैल्यू आपके हिसाब से 4 होगी, राइट, कि 1/4 होगी? Yes, sir. Sir, 4 होगी. 4 होगी. Sorry. 4 होगी. 4 होगी. 4 होगी. सोच Yes, लो. sir. Yes, sir. And I am confident because 16 multiplied by 4 is 16. 64. Sorry. देखो यहाँ पर पहला टर्म 1, अगला टर्म 1 into 1/4, अगला टर्म 1 into 1/4 का स्क्वायर, अगला टर्म Yes, sir. 1 into 1/4 का क्यूब. ये आपको दे देता है 1, 1/4, 1/16, 1/64 एंड सो ऑन. वहीं अगर मैं लिखता Yes, sir. हूँ कॉमन रेशियो, ये कब होगा? जब कॉमन रेशियो कितना है? 1/4. और अगर कॉमन रेशियो 4 है तो क्या हो जाएगा? 1, देन नेक्स्ट नंबर विल बी 4, then it will be 16, 64, right? तो अब बताओ आपकी सीरीज कौन सी होनी चाहिए? 1 4 1 4 1/4. या फिर आपकी सीरीज ऊपर वाली है? कौन सी सीरीज है? Sir, it's 1/4. My common ratio should be 1/4. Then it will only be giving the desired geometric progression or given. ठीक है, इसीलिए डैम कॉन्फिडेंट पहले नहीं बोलना है, ठीक है? पहले सोचना है, उसके बाद बोलना है, राइट? सोच के बोलो, कोई हड़बड़ी नहीं है. Yes, sir. राइट, सोच के आराम से, लाइक देयर इज नो Yes, sir. नीड टू हरी, राइट? ठीक है, एक्सीलेंट चैतन्य बच्चा, एक्सीलेंट. अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट. फर्स्ट टर्म कितना है? 1 और कॉमन रेशियो है 1/4, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो इज 1/4. नाउ दैट द कॉमन रेशियो इज 1/4, वी हैव 1 upon 3/4, 1 by 3/4 which is equal to 4/3. तो आंसर कितना आ जाना चाहिए? 4/3. क्लियर है सभी लोग हमने कैसे सॉल्व किया? एक और क्वेश्चन बनाना है सबको. I'll give you an assignment, ठीक है? उसमें I'll give you this question, ठीक है? All right. So next question देखो. अभी आपने जीपी देख लिया, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स के सम पे. सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, हेडिंग दो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर. सीक्वेंसेस के अंदर ही है, ठीक है टॉपिक. सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4, इन सबको कहते हैं नेचुरल नंबर्स, राइट? होल नंबर्स ग्रेटर देन 0, right, are called, या integers greater than 0 are called as natural numbers. That is 1 2 3 and so on until n, right? So अब अगर suppose मैं इनका sum लेता हूँ 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on till n, तो the answer comes out to be n into n plus 1/2. लिख लो इसको सब लोग. Next one is sum of squared natural numbers. Sum of squares of first n natural numbers. N natural numbers, right? अच्छा, इसका मतलब हुआ 1 square plus 2 square plus 3 square and so on till n square. इसके लिए भी एक खास वैल्यू होती है, और जब आप लोग ये लिख रहे हो याद से सबको ये एक बॉक्स के अंदर डालना है. अच्छा क्लास, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जो असाइनमेंट दिया था और कहा था कि सबको ये ग्रुप पे सबमिट करना है, तो अभी तक किसी ने उस पे सबमिशन क्यों नहीं किया है? कुछ बच्चों ने शायद 1-2 ने किया है, बट आई वांटेड द आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी इन द क्लास. अभी तक बनी नहीं है क्या सबकी फॉर्मूला कॉपीज जो मैंने वेक्टर के लिए बनाने के लिए कहा था? सर आई हैव सबमिटेड. नहीं, जिन्होंने नहीं किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट देम. क्लास लेट मी नो एक एक करके.
Yes, let us start from the students who are new. They might not be knowing about it. The students who are not new. So starting from Veeraj. Veeraj, आपने बना ली कॉपी? तो फॉर्मूला कॉपी में वेक्टर प्रोडक्ट तक बना लिया। तो जितना जितना भी भेजा है सेंड करो, ठीक है, विदाउट एनी डिले। ओके, राइट, बाय टुडे इवनिंग, राइट। नेक्स्ट वन, let us, all right Veeraj? यस सर। राइट, श्रीश बच्चा आप बताओ, हो गया है? फॉर्मूला कॉपी बन गई है? सर बनी है मगर मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है उसमें। कब लिखोगे? सर आई विल फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल। नहीं, डेट देनी पड़ेगी, एज सुन एज से काम नहीं चलेगा। कब लिख लोगे बताओ? सर बाय टुमारो। ठीक है। माहिवेश, फॉर्मूला कॉपी फॉर वेक्टर्स, यस। यस माहिवेश बच्चा बोलो। Sir, formula copy is completed, but the assignment is not completed. सेंड करो जो भी है अपडेट आज Sir, मुझे। assignment is not completed. कोई बात नहीं, Formula copy is done. जितना भी जो भी किया है बाय टुडे इवनिंग आई वांट टू सी, राइट? ठीक है। हाउ अबाउट यू राहुल बच्चा? सर अभी तक खत्म नहीं किया, कल सुबह तक भेज दूंगा। देखो आज कल नहीं चलेगा, ठीक है, आज शाम तक जिसने जितना भी किया है वो स्कैन करके सबको सेंड करना है, ठीक है। एवरी वन ऑफ यू हैज टू सेंड whatever you have done. So आपको मैंने ग्रुप पे लिखा था, you had been given assignment, right, and formula copy. असाइनमेंट थोड़ा सा हम देख सकते हैं कल तक, कल परसों नरसों में जितना बन जाए। देखो मैंने ये भी नहीं कहा है कि आपको हर क्वेश्चन बनाना ही है, ट्राई तो करना है। ट्राई ही नहीं किया ये नहीं होना चाहिए। देखो बनना ना बनना है सेकेंडरी, उसी के लिए तो हम प्रैक्टिस क्लास रखते हैं, राइट? तो बनना ना बनना है सेकेंडरी, लेकिन ट्राई करना है प्राइमरी, ठीक? ओके, बाय टुडे इवनिंग ऑल ऑफ यू आई वांट टू सी बाय टुडे इवनिंग 7 o'clock जो भी आपने जितना भी किया है, कंप्लीट इनकम्प्लीट सब मुझे सेंड करोगे। असाइनमेंट लेवल 1 शुरू से जितना बनाया है, लेवल 1 में जो कुछ भी बनाया है, फिर लेवल 2 हेडिंग होनी चाहिए ऊपर, लेवल 1 आपका नाम होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट में। लेवल 1 फॉर एग्जांपल अगर कार्तिकेय सेंडिंग इट टू मी, कार्तिकेय विल राइट फर्स्ट पेज पे लेवल 1 कार्तिकेय, देन वहां से लेकर अंटिल नेक्स्ट काफी सारे जहां तक उसने लेवल 1 सॉल्व किया वो उसी डॉक्यूमेंट में लेवल 2। there are several apps available on Google Play Store, like one of them, no advertisement for any app, but there are many of them जैसे document scanner, doc scanner, there is an app called Note Block. This is I think from American app, one of the American app. इसी तरह से आपको Indian, American काफी सारे apps मिल जाएंगे, right? These are apps जो आपको PDF बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक? और भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। नाउ एज आई वाज सेइंग कि आप लोगों को बाय टुडे इवनिंग मुझे ये दो चीजें जितना भी हुआ है सेंड करना है ना, नो बहाने, जितना भी हुआ है सेंड करना है। फॉर्मूला कॉपी जितनी बन गई है, राइट? क्योंकि अगर देखो बच्चा अभी नहीं करोगे ना तो बाद में रोना पड़ेगा, राइट? सो टू प्रिवेंट द हरी एंड वरी ऑफ टुमारो, इट इज बेटर टू वर्क हार्ड इन द प्रेजेंट, है ना? आप लोग एक बहुत बड़ा एम लेके चल रहे हो अपने सामने, याद रखो, यू आर गोइंग टू compete with students across the country बच्चा लोग। So मैं यहाँ पर आप लोगों को ऐसा नहीं है you are the first students जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। I have been dealing with hundreds of students, right? And I know the level of competition that is being faced by all of you from people like I am teaching right now, people of Bangalore, people of Hyderabad, people of Chennai, Mumbai, all across the country. So I am being able to gauge कि हर जगह के बच्चों का प्रिपरेशन लेवल क्या है, बच्चे किस ढंग से मेहनत कर रहे हैं। चाहे आप रायपुर जैसे शहर में हो जहां पे कोई बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि आप मेहनत नहीं करोगे, रादर ज्यादा मेहनत करके दिखाओ, राइट? तो जिस शहर से हो, जिस घर से हो, जिन जगहों से हो,
वो जगहें आपकी नाम से जानी जाएं। अगर आप होली क्रॉस कांबा में पढ़ते हैं, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, आप ज्ञान गंगा में पढ़ते हैं, आप रायन इंटरनेशनल में पढ़ते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप केपीएस में पढ़ते हो, डीपीएस में पढ़ते हो, ये सारी जगहें आपके नाम से जानी जाएं कि हाँ भाई कार्तिकेय हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, हाँ भाई कुशल रामवानी हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, हाँ भाई राहुल, वीरज, अमीश, एन्या, श्रीश, चैतन्य हमारे यहाँ के बच्चे हैं। ये आपके स्कूलों को बोलने में गर्व होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप लोग अपना दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। एम आई क्लियर टू व्हाट आई एम सेइंग ऑल ऑफ यू? कि आप लोगों को अपने आप को मेहनती बनाना पड़ेगा। कि सर ऐसे हुआ है, सर मैं तो देर से उठा, सर मैं तो देर से कोई, तो हर चीज देर से होने लगेगी, फिर देर से ही क्लियर करोगे एग्जाम, राइट? अगर सब चीजें टाइम पर करनी है तो आज मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके फैकल्टी आपसे कह रहे हैं कि बच्चा आज शाम तक 7 बजे तक असाइनमेंट सबमिट कर दो, तो 6:59 तक वो सारी असाइनमेंट आ जाने चाहिए। देखो ये सब करने से मुझे कुछ मिलेगा क्या एज अ फैकल्टी? नो। किसको मिलेगा? यू ऑल विल बी द वंस हु विल गेन, राइट? ये बात समझो कि इस तरह से जो बच्चे या जो भी इंसान अपने हर काम को सही समय पे करता है, धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है जीवन को हर काम को सही समय पर खत्म करने की। क्लियर हो रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? एग्जाम्पल लो, जैसे आई टेल यू वन एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु इज एक्चुअली सबमिटिंग ऑल हिज असाइनमेंट्स इन टाइम। ये नहीं कह रहे हैं कि आप हर चीज बना लो, जितना बना सको उतना बनाओ, जो भी हुआ उतना सबमिट कर दो, सबमिट तो करो। उसको रिवील करने से डरो मत कि कोई और क्या सोचेगा, सर क्या सोचेंगे, बाकी लोग क्या सोचेंगे। ऑल ऑफ दैट सोच इज सेकेंडरी। व्हाट मैटर्स इज क्या आप मेहनत कर रहे हो। आई विल रिपीट, व्हाट मैटर्स इज क्या आप मेहनत कर रहे हो, राइट? That is going to have a very, very huge impact on your future, right? Years ago, when I used to be in college, right? I have been through IIT. I'm a graduate. I'm postgraduate from IIT, right? तो जब मैं कभी अपने college में जब भी I used to walk across, I have been like a graduate of VIT University Vellore. So जब I used to be in my college, no, there used to be walls. हमारे like college में walls हुआ करती थी और that used to say wall speak. Wall speak मतलब कुछ thoughts लिखे हुए रहते थे on the walls. So one of the walls read this, what I am writing here. इसे पढ़ना, ठीक है? 99% of your life is and 1% of your life is. 1% of your life is what happens to you. 99% of your life is how you respond. ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, how you respond to what happens to you. इसको एब्जॉर्ब करो कि आपकी लाइफ is not decided by where you are born or what are the resources given to you. Your life is depending upon on a 99% ratio how you respond to what happens to you. This is the key word. How you respond. This is what is going to decide how your future is going to be. तो अपने आप को सतर्क दिलाओ। कभी आप टेलीविजन के सामने बैठे हो, घर वालों के साथ बातें कर रहे हो, राइट, या दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो इतनी ज्यादा कि वो जरूरी नहीं है टाइम के हिसाब से, तो आपको अपने आप को याद दिलाना है, अरे नहीं 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 कार्तिकेय ये क्या कर रहा है यार तू। अपने आप को याद दिलाना है, अरे चैतन्य इतना टाइम कैसे यहाँ गवा सकता है। नहीं, देखो आपको पता होना चाहिए कि मेरा इस टाइम से इस टाइम तक खेलने का समय, इस टाइम से इस टाइम तक फैमिली के साथ का समय, लेकिन ये इंश्योर करना है कि ये 2 घंटे या 3 घंटे मुझे इतना अच्छे से पढ़ना है कि उस दिन का देयर इज नो रिग्रेट्स कि भाई मैंने आज क्यों अपना काम सही समय पे नहीं किया, राइट? हर चीज जरूरी है जीवन में, बट एट द सेम टाइम इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने जीवन की कमान को पकड़ो, बिकॉज फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ योर फ्यूचर सेल्फ शुड बी प्राउड ऑफ योर प्रेजेंट सेल्फ. I will repeat, few years from now
फ्यूचर कार्तिकेया शुड बी प्राउड ऑफ द प्रेजेंट कार्तिकेया कि वाह यार तूने आज उस समय इतनी मेहनत की थी इसीलिए आज यहाँ पर है जहां पर भी है, राइट? ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए. आई होप माई मैसेज इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर टू यू. समराइजिंग व्हाट आई हैव सेड कि अपने समय का जितना बेस्ट उपयोग कर सकते हो करो. अपने आप के लिए टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इस समय तक ये करना है, राइट? यहाँ से यहाँ तक. So this is how you have to regulate your day. रोज रात को अगर आप 11 बजे सोते हो तो हर दिन 11 बजे सोना है, हर दिन सुबह 6 बजे उठ जाना है. Whatever, like what that is your lifestyle. Decide, but then do it every day. Dot. आपको फैकल्टी कह रहा है कि आपको 1 बजे क्लास में आना है. It means आपको कहा गया है कि 10 मिनट पहले क्लास में घुस जाओ. इससे मुझे क्या फायदा होगा सोचो. Do I have any advantage asking you all to come 10 minutes early? No. Advantage is with the students. What? कि ऐसा ना हो कि आप एक बजे कहा गया था, फिर एक 5 पे आपको कॉल किया गया, बच्चा क्यों नहीं आए हो, क्लास में आ जाओ, फिर आप बोलोगे यस यस सर आई एम ट्राइंग, फिर आप 1:07 पे क्लास पे आओगे. ऐसे नहीं करना है. रादर आपको फैकल्टी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. 10 मिनट पहले बी ऑन द क्लास. भले वहां दिखाए फैकल्टी हैज नॉट स्टार्टेड द मीटिंग या दिखाए यू आर इन द वेटिंग रूम, कोई बात नहीं. वेट करो. By 1 o'clock तक वेट करो, अपने आप फैकल्टी विल स्टार्ट द क्लास. लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी के सामने ऐसे ही खड़े होना है. अपना सिलेबस, जेई का एग्जाम आए, नीट का पेपर आए, उसके पहले हो जाना चाहिए. उसके पहले जबरदस्त प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. आपको तैयार खड़े रहना है. जैसे ही जेई का एग्जाम आए फटाक से पेपर अपीयर किए और फुल ऑन फुल. ये अप्रोच डालनी है अपने आप में, राइट? I hope I am clear to all of you कि आपके ये छोटे छोटे स्टेप्स जो आप अभी लोगे is going to make you toppers of the tomorrow. ये बात याद रखो, right? Am I clear everyone? जितना हुआ है उतना भेजो. जरूरी नहीं है कि हर चीज खत्म करनी है. जो हो रहा है वो भेजते जाओ. अपडेट भेजो कि सर आज मैंने 10 सम कर लिए, सर आज मैंने 10 और कर लिए. मेरा एम है कि मैं आपको आने वाले 5 दिन के अंदर ये 50 सम करके दिखाऊंगा, हर दिन 10-10 करूंगा. या सर हर दिन 10 क्वेश्चंस मेरी काबिलियत है, मैं उतना ही कर सकती हूँ, आई विल डू दैट. कोई बच्चा बोलेगा नो सर मैं हर दिन 20 क्वेश्चन कर सकता हूँ. कोशिश करो. सेट एन एम, पुट इट अक्रॉस. कोशिश करो, राइट? अपने आप की लिमिट सेट करो. जैसे आज आप तय कर लो, फॉर एग्जाम्पल आपको वेक्टर्स चैप्टर से यू से मुझे 15 क्वेश्चंस बनाने हैं. टेक योर लिमिट कि देखो सबसे पहले कहां तक पहुंचना है. सपोज मेरे पास 160 क्वेश्चंस हैं या 150 क्वेश्चंस हैं, तो सेट करो अपनी लिमिट कि मैं हर दिन कितना समय वेक्टर्स बनाने पे दे सकता हूं, राइट? तो सपोज 150 क्वेश्चंस हैं, आई विल मेक 15 क्वेश्चंस टुडे, मे बी आई विल बी एबल टू टेक टाइम एंड मे बी डू 40 क्वेश्चंस टुमारो. ठीक है? तो अपनी खुद की लिमिट सेट करो और हर दिन अपडेट भेजो बाय 7 o'clock दैट सर आउट ऑफ 150 आई एम डन विद, out of 150 I'm done with today 15, today I'm done with 30, 40. इस तरह से मुझे आपको अपडेट्स भेजती रहनी है. ग्रुप पे भेजो, राइट? इस तरह से compete करो एक दूसरे से, राइट? क्योंकि आपको अल्टीमेटली compete तो करना ही है पूरे देश भर के बच्चों से. अपने आप से compete नहीं कर पाए तो किसी और से कैसे compete करोगे? ठीक है? इसीलिए आज से मेहनत करो, सही समय पे समय का सदुपयोग करो, राइट? जहां जहां दिक्कत आएगी हम उन चीजों को प्रैक्टिस क्लास में सॉल्व करेंगे. I hope my message is outright clear to all of you. Respond properly, right? Respond करो properly to the situation. अगर आपको ग्रुप पे कोई मैसेज भेजा जा रहा है, write there yes sir, right? This shows your attentiveness to the message that is being conveyed. ऐसा नहीं डर गए, अरे सर क्या सोचेंगे, अरे मैंने तो हुआ ही नहीं, छोड़ो yes बोलता ही नहीं, बाद में बोल दूंगा सर मैंने तो देखा ही नहीं. ये सब चीजें हटाओ. ये like these are not the attitudes of a person who is aiming for a bigger target. ये छोटी छोटी चीजों को लाना ही नहीं है सामने. सर आपने बोल दिया ना मैं करके दिखाऊंगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए. क्लियर हो रहा है सब में? एवरीबॉडी आउटराइट क्लियर? अरे भाई अब तो बोल दो हाँ ना यस नो. एवरीवन क्लियर? बच्चा लोग I'll put your mics on. Yes. Yes sir. Right? Clear everyone? क्या करना है? Yes, शुरुआत करो, sir. राइट? शुरुआत करो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. एंड जहां जहां दिक्कत आए लेट मी नो. आप लोगों को मैंने फॉर्मूला कॉपी बनाने का तरीका बताया है. कहीं दिक्कत आती है मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दो कि सर मुझे फॉर्मूला कॉपी बनाने में दिक्कत हो रही है या फिर ये चैलेंज आ रहा है, बताइए कैसे बनाएं. या फिर प्रैक्टिस क्लास में पूछ लो. ठीक है? एनीथिंग इज फाइन.
बट रुकना मत, चलते रहना। भले हर दिन में, भले कोई ऐसा दिन आए जहां आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाओ, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करो, उसमें भी मैं खुश हूं, बट करो तो, राइट? क्लियर है ना सब लोग, बच्चा लोग? यस सर। ग्रेट ग्रेट, गेट गोइंग एवरीवन, आज से शुरुआत करो। आई वांट टू सी एवरीबॉडी सेंडिंग मी अपडेट्स एवरी डे एट 7 PM इन द इवनिंग। उसके पहले जितना बना सकते हो, भले सुबह 5 बजे से मेहनत करो, नोबडी इज स्टॉपिंग यू ऑन दैट। भले सुबह 4 बजे उठ जाओ, भले रात में जल्दी सो जाओ एट 10 o'clock, सुबह 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे तक फ्रेश होके स्टार्ट ऑफ। कोई रोकने वाला नहीं है आपको मेहनत करने से। मेहनत करो, इवनिंग में एवरीडे अपडेट करो कि सर मैंने इस हफ्ते में वेक्टर्स चैप्टर से आपने जो डीसी पांडे कही है या जो आपने एचसीवी कही है उससे, उसमें 120 क्वेश्चंस है, यहाँ 140 है। आई विल स्टार्ट ऑफ टुडे। मुझे भले पर्सनल मैसेज पे भेजो, अगर आपको सबके सामने अपडेट नहीं करना मुझे भले भेजो और बताओ कि सर इस वीक मेरा ये टारगेट है और अपने इस टारगेट के लिए मैं रोज 15 क्वेश्चन या रोज 20 क्वेश्चन करूंगा, एंड देन ये लीजिए और उसके पहले टारगेट पूरा करके दिखाओ, राइट? ऑलराइट बच्चा लोग, आई होप माय मैसेज इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कीप डूइंग, अच्छे से मेहनत करो, एंड बाय दिस वीकेंड आप लोगों का टेस्ट होगा, राइट, फॉर वेक्टर्स एंड जो भी मैथमेटिकल टूल्स हैं। तो इंश्योर करना है कि उसके पहले सिर्फ टेस्ट के लिए मत पढ़ो, अपने मजे के लिए पढ़ो, राइट? डू स्टडी फॉर योर एंजॉयमेंट, राइट? और जिन बच्चों का वेक्टर्स नहीं हुआ है उनके लिए we'll be taking up separate class and we'll teach you vectors, don't worry about it, right? ठीक है, ऑल राइट, आई थिंक आप लोगों की अब नेक्स्ट क्लासेस शुरू होने वाली होगी। देयर वाज वन स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि सर व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ क्लास 10th एग्जाम, हम लोगों को एंजाइटी हो रही है, प्लीज ड्रॉप द एंजाइटी। माय वन सिंसियर सजेशन, ड्रॉप द एंजाइटी। जो होता है होने दो, ठीक है? रिलैक्स रहो, जितनी मेहनत कर ली वो कर चुके, अब 11th में आ गए। कम बैक टू द प्रेजेंट इज द ओनली आंसर। कम बैक टू द प्रेजेंट। अभी क्लास में आ जाओ, अभी क्लास में हो ना, अभी 11th की पढ़ाई कर रहे हो ना, अच्छे से पढ़ाई करो, जो हो रहा है होने दो। जैसे ही मन में थॉट आता है अरे क्या होगा, कम मार्क्स आएंगे, ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये कौन सोचेगा, वो कौन सोचेगा, हटाओ। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं क्लास 11th में हूँ, मुझे अच्छे से मेहनत करनी है। व्हाट कैन आई डू राइट नाउ? जो बीत चुका उसको हटाओ, उसमें से क्या मैसेज है, ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट एंड डू इट। ऑल द बेस्ट। और भी आगे डिस्कशंस कर सकते हैं अगली क्लास में एट द एंड, बट इंश्योर करो बाय इवनिंग 7 o'clock मुझे आप सबका अपडेट आ जानी चाहिए, जितना हुआ है, जो भी हुआ है। यस क्लास, गुड नाइट, good day in fact, sorry, right? Thank you everyone, thank you, thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. everyone. Thank you. Thank you, sir.